Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently uploaded an informative video on YouTube, focusing on the topic of international problems for Class 9 students of Maharashtra State Board, specifically in political science. This video aims to provide a detailed explanation of various international problems that affect our world today, covering a range of topics such as global conflicts, terrorism, climate change, and poverty. The video offers a comprehensive understanding of these pressing issues by incorporating engaging visuals and expert explanations. It effectively enhances the student's knowledge and comprehension of global affairs. The tutorial begins by delving into the concept of international problems and their impact on nations. It then proceeds to explore specific challenges like territorial disputes, nuclear proliferation, and economic inequality. The video further highlights the role of international organizations, like the United Nations, in mitigating these problems through diplomacy and cooperation. Through this video, students will gain valuable insights into the complexities of global politics and understand how these issues are interconnected. It empowers them to think critically and encourages a sense of global citizenship. By fostering awareness and understanding, this tutorial paves the way for young minds to contribute positively towards addressing international problems and building a more peaceful and prosperous world. Ignited Minds Tutorials initiative to provide knowledge-oriented content on international problems for Class 9 Maharashtra State Board. Students reflects their commitment to quality education and the holistic development of students. ओके पीपल, हम और कॉन्फ्रेंसेज ऑन एनवायरनमेंट, तो हमने देखा कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आज की तारीख में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एक प्रोमिनेंट इशू बनता जा रहा है. और द रीज़न वाई इट्स गेनिंग much of importance and the reason why it is becoming a prominent issue day by day is because every country has a contribution to it. हमारे ग्लोबल लेवल पे जो भी पोल्यूशन हो रहा है वो सबका कंट्रीब्यूशन है. हो सकता है कोई कंट्री है स्विट्जरलैंड जो बहुत ही सावधानी से अपने पोल्यूशन लेवल्स को मेंटेन कर रही है. भूटान कार्बन नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े देश जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं. ठीक है, काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, काफ़ी व्हीकल्स हैं और इन पे कोई नियंत्रण नहीं है और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है. ठीक है, मतलब रायता 4-5 कंट्रीज फैला रहे हैं लेकिन जो इफेक्ट है वो सबको भुगतना पड़ रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ बेसिकली. तो इसीलिए इन कॉन्फ्रेंसेज में क्या डिस्कस होता है कि भाई साहब ये आपकी कंट्री है और इस कंट्री से हमने मूल्यांकन किया है कि इतना पोल्यूशन लेवल क्रिएट हो रहा है, तो आप इसको क्या कंट्रोल करेंगे, क्या क्या आप अगर बोलेंगे भाई साहब ये जो CNG, ठीक है, या PUC, ये जो स्टेप्स हैं, तुमको क्या लगता है इंडिया ने ये स्टेप्स लिए हुए हैं? नहीं भाई साहब, ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है. इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये कॉन्फ्रेंसेस में डिसाइड हुआ है कि भाई साहब इसको कम कीजिए. ठीक है, इसको कम करने का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, मतलब ये जो PUC है, चाहे हम उसको झोल से करवाएं या भाई साहब एक्चुअली करवाएं. ठीक है, ये आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो गाड़ियों में होता है इसको करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट हैव बीन ओके. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम इज बेसिकली अ प्लेस, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट held at Stockholm from the 5th to 16th of June 1972. Responsibility of all nations to cooperate to overcome population. ये सारे nations की responsibility है cooperate करने के लिए in order to overcome population. ठीक है, sorry, pollution. Developing nations feel that the developed nations are more responsible for the decline of environment and they should be held responsible. ज़्यादा करके डेवलप नेशंस में आपको फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेंगे. तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया वगैरह, ठीक है, इनका ये मानना है कि जो डेवलप नेशंस हैं उनकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हुआ है और ये कुछ हद तक सही भी है. ठीक है, इश्यू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द कॉमन ग्लोबल वेल्थ वाज रेज्ड. तो कॉमन ग्लोबल वेल्थ क्या है? आपका एनवायरनमेंट. ये सबके लिए कॉमन है और इसका प्रोटेक्शन सबके लिए ज़रूरी है.
तो इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे ये सारी चीज़ें बार बार रिपीटेडली डिस्कस होती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस टू प्रोटेक्ट दीज रिसोर्सेज। एक्चुअली ये जब समिट्स होते हैं या ये जब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हर एक कंट्री को एक पूरे साल में या 4-5 सालों में क्या किया है वो सबमिट करना पड़ता है, और आगे का क्या प्लान है वो भी सबमिट करना पड़ता है। एज अ नेशन और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशन दे हैव टू बेसिकली सबमिट फुल प्रूफ प्लान्स, ठीक है, कि कैसे चल रहा है और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पोल्यूशन को अंडर कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा, दिस इज अ मैंडेट, ठीक है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस टू प्रोटेक्ट दीज रिसोर्सेज। तो इंडिया ने जैसे भाई साहब क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, इंडिया को बताना पड़ेगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, प्लस जो गैस एमिटिंग फैक्ट्रीज होती हैं उनमें हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, किस तरह से डंपिंग को हमने कंट्रोल किया हुआ, ये सारे तमाम चीज़ें, ठीक है। UN created the United Nations Environment Program, that is UNEP। UN मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रीटीज अबाउट एनवायरनमेंट हैव बीन साइन, तो बड़े बड़े ट्रीटीज साइन हुए हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल एट नेशनल एज वेल एज एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी भाई साहब आपका एनवायरनमेंट पे काफ़ी इश्यूज डिस्कस हुए हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अज्यूम्ड रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। तो काफ़ी सारे नॉन गवर्नमेंटल, ऐसा नहीं है कि सारे एफर्ट जो है तो गवर्नमेंट को ही लेने हैं या कंट्रीज को ही लेने हैं, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस मामले में आगे आए हैं, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। तो काफी सारे इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अज्यूम्ड रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो काफी सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का भी भाई साहब इसमें रोल है। रियो कॉन्फ्रेंस दैट हैपेंड इन 1992, नेक्स्ट स्टेज ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है। आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज टेस्ट, तो एक ऐसे डेवलपमेंट की बातें की गई हैं जहां पे डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हो रहा हो लेकिन इस कदर हो रहा हो कि आगे की पीढ़ी के लिए कुछ ना बचे, तो दैट इज कॉल्ड नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपने डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट तो खूब किया लेकिन उसके साथ साथ इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया कि लोगों का बचना मुश्किल हो गया, तो इसको अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट विच इज सस्टेनेबल, मतलब आगे की पीढ़ियों को भी उस डेवलपमेंट का फायदा हो, ठीक है। आप बहुत खतरनाक डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन आगे की पीढ़ी तब तक बची ही नहीं रहेगी, आपने इतना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है उस डेवलपमेंट के चक्कर में, तो दैट कैन नॉट बी ग्रेडेड एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, डिफरेंट ट्रीटीज रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा हैव बीन साइन। तो अलग अलग ट्रीटीज साइन हुए हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इन पे साइन हुई है, ठीक है। Kyoto conference that was signed in 1997. In 1997, conference at Kyoto laid down the protocols for the developed countries for preventing climate change. तो डेवलप कंट्रीज के लिए भाई साहब आपके क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटोकॉल लिया गया। In 1997, कॉन्फ्रेंस एट कोयोटो लेड डाउन द प्रोटोकॉल्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज। तो प्रोटोकॉल मतलब एक रूल बना दिया गया, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनको इन रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे ताकि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। प्रोटोकॉल्स वेर एप्लीकेबल फॉर 15 ईयर्स, ये प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डेवलप कंट्रीज पे 15 साल के लिए लागू होती हैं, ठीक है। दे आर एप्लीकेबल फॉर 15 ईयर्स। पेरिस कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन 2015, अ कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड एट पेरिस in the November 2015. An appeal that all nations should make concerted efforts to stop climate change and global warming was made. तो अपील्स की गई और काफ़ी सारे दलील भी दिए गए कि भाई साहब जितने भी
क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबको काम करना है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज वेर एडवाइज्ड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज acquire technology to achieve these goals, ठीक है। Okay, choose the correct option from the given options and complete the statements. Which among the following days is observed on an international level? Teachers Day, Earth Day, Children's Day or Flag Day? So Earth Day that is observed on an international level, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑब्जर्व होता है जहाँ पे हम अर्थ के बारे में उस दिन को कॉन्शियसनेस स्प्रेड करते हैं, ठीक है। The first Earth Day was celebrated on the 22nd of April 1970, 22nd of May 1970, 22nd of June or 22nd of February. So it was on the 22nd of April. State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. It is necessary that all the nations should cooperate in order to find remedies on environmental degradation. क्या ये सही है? This is true, right? Why? बिकॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे अगर हम लोग सब कॉन्शियसली एफर्ट्स नहीं डालेंगे सो इट विल बी अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक कंट्री के फैलाए गए पोल्यूशन से बाकी दूसरे नेबरिंग कंट्रीज प्लस दूसरे कंट्रीज भी इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। सो ट्रू, द एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इनके बहुत लंबे इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन नेशन, एक नेशन से फैलाए गए पोल्यूशन का इफेक्ट सिर्फ एक नेशन पे नहीं आएगा, दूसरे नेशंस पे भी आएंगे, ठीक है। बट आर एक्सपीरियंस इंटरनेशनली, जैसे अगर एक नेशन ने बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस को रिलीज किया जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, दूसरे नेशंस पे भी इनका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। दे विल ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। दिस अवेयरनेस वॉज एक्सप्रेस्ड एट द इंटरनेशनल लेवल इन 1970। Thus, the question of environmental safety and the need to find remedies on environmental degradation began to be discussed at the international level. तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे डिस्कशंस होने लगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। Further, in 1990, globalization took place and this increased the interdependence among nations. तो ग्लोबलाइजेशन के चलते इंटरडिपेंडेंस बढ़ा नेशंस में, ठीक है। As a result, there emerged a need for the nations to cooperate with each other. तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का नीड अराइज हुआ एंड एक्ट विद ईच अदर्स कंसेंट इन ऑर्डर टू डील विद द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो एक दूसरे के भाई साहब कंसेंट से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को डील करना, ओके। कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर द गिवन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉजेज, विजिबल इफेक्ट्स एंड रेमेडियल मेजर्स। तो आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कॉजेज क्या क्या हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। एक तो हो गया भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो दैट इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ। सो आपके कॉजेज में एक प्राइमरी कॉज क्या है भाई साहब? आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, ठीक है। ये कॉजेज हो गया भाई साहब। द इंक्रीजिंग नीड फॉर एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट गाड़ियों को चलाने में है, मोटर्स को चलाने में है, और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको बहुत एक्सटेंसिव तरीके से फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा, और फ्यूल के बर्निंग से आपका ग्लोबल वार्मिंग प्लस एयर पोल्यूशन दोनों भी होता है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पैदावार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए हमको फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है एक्सटेंसिव तरीके से, ठीक है, प्लस पेस्टिसाइड्स भी। साउंड पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स की वजह से साउंड पोल्यूशन, रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आज की तारीख में सारे कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर से काफ़ी सारा रेडिएशन एमिट होता है जो बहुत हार्मफुल है। ऑयल लीकेजेस हो रहे हैं भाई साहब, देयर आर लॉट ऑफ ऑयल लीकेजेस विच आर हैपनिंग, एंड दीज ऑयल लीकेजेस आर हैपनिंग इन सीज एंड ओशंस। ये सीज और ओशंस में जो ऑयल्स को निकाला जाता है उसमें भाई साहब होल्स होते हैं जिसके वजह से ऑयल लीकेजेस होते हैं, और इन सीज और ओशंस का पानी दूषित हो रहा है। लीकेजेस ऑफ केमिकल गैसेस, तो काफ़ी सारे केमिकल गैसेस हैं जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से कंटिन्यूसली भाई साहब लीकेज हो रहे हैं, एंड दे कैन हैव अ डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। विजिबल इफेक्ट्स, तो विजिबल इफेक्ट्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं? डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से हमने सॉइल में फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया है कि आज की तारीख में
अभी सॉइल के पास ये कैपेसिटी नहीं रही है कि अपने से ही प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, ठीक है। एक टाइम था जब सॉइल में जान हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में हमने इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली फर्टिलाइजर को यूज़ किया है कि सॉइल हैज़ गॉट नो, मतलब सॉइल इज बेसिकली गेटिंग डिग्रेडेड डे बाय डे, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे, और जितना ज़्यादा सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होते जाएंगे सॉइल की फर्टिलिटी भी उतनी ही ड्रॉप करती जाएगी, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज एंड प्लांट्स, हमको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स दिखते हैं विच हैव गॉन एक्सटिंक्ट, ठीक है, विच हैव परमानेंटली गॉन एक्सटिंक्ट। इंसिडेंस ऑफ न्यूअर डिजीजेस, ठीक है, अलग अलग नए नए तरीके के डिजीजेस इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसे डिजीजेस जो पहले हमने सुने नहीं थे, जाने नहीं थे या देखे नहीं थे, अभी इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एंड दीज आर प्राइमरली और समवेयर लिंक्ड टू द पोल्यूशन लेवल्स, कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन लेवल से लिंक्ड है, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड सीज, एक्वाटिक पोल्यूशन हो रहा है भाई साहब, एसिड रेन्स हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारा पोल्यूशन है, इसीलिए जब बारिश होती है तो रेन इज फॉलिंग इन टर्म्स ऑफ एन एसिड, मतलब इसी पोल्यूशन के साथ पानी मिक्स होकर एसिड बन जाता है, और यही एसिड रेन जब ओशंस और रिवर्स में फॉल करता है तो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ के जीव जंतुओं का नुकसान होता है। मैनी फिशेस डाई बिकॉज दिस इज एसिड रेन विच इज़ फॉलिंग ऑन द वाटर एंड दे कंज्यूम दिस एसिड एंड डाई, ठीक है। वाटर शॉर्टेज, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी ओजोन लेयर के कम होने से हमको क्या दिक्कत आएगी? ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करता है, हमको अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है। नाउ दीज अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम द सन व्हेन दे रीच अस डायरेक्टली दे हैव अ हाई पोटेंशियल टू कॉज स्किन कैंसर, ठीक है, बट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम द सन टू रीच अस, ठीक है। लेकिन पोल्यूशन के चलते या जितने भी आपके एसी यूनिट्स हैं उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो एमिट होते हैं वो इस ओजोन लेयर को बेसिकली खत्म कर रहे हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग इट। वाटर शॉर्टेज हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं विच आर एक्चुअली गोइंग ऑन अ वाटर शॉर्टेज मोड, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल बेसिकली रिपब्लिक डे में कितने लोगों ने रिपब्लिक डे का प्रोग्राम जो एक्चुअली टेलीकास्ट होता है, ठीक है, सीधा रेड फोर्ट से वो देखा रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे उस दिन प्राइम मिनिस्टर का एक स्पीच होता है और उस स्पीच में पूरे साल भर जो काम होता है उसके ऊपर ब्यौरा देते हैं वो, ठीक है। और उन्होंने 9 पॉइंट्स बोले हैं इंडिया के लिए, जिसमें पहला पॉइंट है पानी बचाइए, ठीक है, क्योंकि पानी अभी लुप्त प्राय होने वाला है, ठीक है। इट्स गोइंग टू गो एक्सटेंट इन मैनी कंट्रीज। हमारे लिए अभी पोर्टेबल वाटर एक गोल्ड के समान हो जाएगा। It will, the day is not far when it will be sold in as costlier as it is sold in Middle East countries, ठीक है। तो उन्होंने पहला जो रिक्वेस्ट किया था उसमें पानी को बचाने का रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट इसलिए किया है, एक प्राइम मिनिस्टर अगर कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली एक नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। और बहुत जल्द इंडिया में भी ये शॉर्टेज होने वाला है, ठीक है, ये शॉर्टेज होने वाला ही है, देयर इज़ नो अदर वे। फ्लक्चुएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ रेनफॉल, तो आप देखोगे रेनफॉल में काफ़ी सारा फ्लक्चुएशन हुआ है। जहाँ पे रेनफॉल कभी भी नहीं होता था वहाँ पे रेनफॉल दिख रहा है, और जहाँ पे रेनफॉल लगातार होता था वहाँ पे कम होता जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर फ्लक्चुएशंस विच हैव बीन सीन। ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे गैसेज रिलीज हो रहे हैं जो पॉइजनस हैं, दे आर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। हाँ, जाना है, आपके ही दोस्त वगैरह होंगे अभी। मानसिकता सोचो भाई साहब, पाते हुए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ओह, मतलब ठीक है आप नहीं पाद रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी पाद रही है, और यही हलचल है भाई साहब। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भाई हम भी थे अतरंगी, लेकिन इस तरह के नहीं थे भाई साहब। हमारे लिए वही था, किसी के साथ पंगा हो गया उसके साइकिल की हवा खोल दो, बस इतने में हम खुश थे। ये तो पता नहीं क्या किसके साथ इनका पंगा है, किसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन है, क्या करना चाहते हैं जीवन में, कहाँ से स्क्रू ढीला है पता नहीं, ये इधर से किस जगह पे मतलब इलाज की ज़रूरत है यही नहीं समझ में आएगा। इनका एक्सरे कराओगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ के नट बोल्ट खुले होंगे। ओके, ड्राई अप ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, ड्राइंग अप ऑफ, बड़ी अतरंगी आपका ये पूरा जनरेशन चल रहा है। क्या क्या गाने रिलीज़ हो रहे हैं भाई साहब, मैं नहीं तो कौन बे, अरे ये कौन सा गाना है भाई साहब, दिमाग का इलाज करा लो ऐसे गाने प्रोड्यूस करने के पहले, और चल रहे हैं भाई साहब, मिलियन व्यूज़ चल रहे हैं भाई साहब।
ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, तो काफी सारे आपके जो रिवर्स और लेक्स जो पोर्टेबल वाटर सोर्सेज होते हैं वो ड्राई अप हो रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग ड्राइड अप बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग, ठीक है। रेमेडियल मेजर्स यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करें, ठीक है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू न्यूक्लियर प्लांट टू बी डन अवे फ्रॉम द फ्लोरा एंड फाइना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट जो होता है हमारे लिए, न्यूक्लियर एनर्जी सबसे सस्ती एनर्जी है और बहुत बढ़िया किस्म की एनर्जी भी है। प्रॉब्लम ये है कि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना ही कभी पानी की कमी होगी। इनफैक्ट न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए आप सी वाटर को भी पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं, ठीक है। समुंदर के पानी को भी आप ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं अगर आपने इफेक्टिवली न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया तो, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ और भाई साहब तबाही मच जाएगी, ठीक है। इट्स बेसिकली वेरी वेरी डेंजरस टू हैंडल न्यूक्लियर एनर्जी क्योंकि इसमें से कंटिन्यूस रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर आपको कोई न्यूक्लियर प्लांट बाकायदा बनाना भी है तो रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनाना चाहिए ताकि लोगों को इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। इनका क्या करें, इनको कहाँ भेजें भाई साहब। न्यूक्लियर प्लांट को तो हम भाई साहब शहर के बाहर स्थापित कर दें, इनके लिए तो कोई पागल खाना भी नहीं बना होगा भाई साहब। मैक्सिमम यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड गेटिंग पीयूसी डन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बहुत बारी एग्जांपल दिया है कि अगर आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेने के लिए आपको सरकारी दफ्तर के इतने चक्कर काटने पड़ेंगे कि आपके जूते घिस जाएंगे, ठीक है। देखिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर कोई भी ले सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका लाइसेंस होना चाहिए। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को लेने से गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, लेकिन लाइसेंस देने में आपके जूते घिसा देंगी। आप इतने बार चक्कर काटेंगे। मतलब वहाँ पे कैसा है, देखो ड्राइविंग कैसा है, मतलब अगर आपको ऐसा ड्राइविंग दिया जाएगा, ऐसे चौक लाइन रहेगा और बैक कर रहे हैं आप गाड़ी को, थोड़ा भी इधर उधर हो गया, नहीं 1 साल बाद आइए, ऐसा सीधा सीधा ऐसे बोल देंगे, नहीं आपका भी टाइम लगेगा। अरे भाई साहब आप सोचिए, एक 4 व्हीलर को आप बैक कर रहे हैं और एक लाइन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा करके दिया है आपको, उसमें थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही ना भाई साहब। लोग जिंदा इंसान के ऊपर बैक करते हुए गाड़ी चला देते हैं, तो यहाँ पे तो मतलब चूने के ऊपर कितना ही आप क्या कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिस्करेज किया जाता है। डिस्करेज किया जाता है मतलब आपका जो लाइसेंस लेने का प्रोसेस है, इतना लोग परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने गिव अप कर दिया, अरे नहीं चाहिए भाई साहब 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ठीक है, नहीं चाहिए। तो अभी इसका रिप्लेसमेंट क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलते क्या हो रहा है, वो सारे लोग जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेते थे उन्होंने रिजेक्ट करके अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो सफ़र कर रहे हैं। और वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी तरह नहीं है, ठीक है, जहाँ पे लोग लटक रहे हैं भाई साहब, या मतलब कैसे भी करके बस हो या ट्रेन हो, ठीक है, 8:30 बजे चले जाओ भाई साहब, तुम घुस भी गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाकायदा अच्छा किस्म का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे सफ़र करने में मज़ा है। तो ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ पे इंडिया में तो भाई साहब आपने गाड़ी चलाना सीखा हो या ना सीखा हो, घर तक लाइसेंस पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब मैं बता सकता हूँ, आराम से बोल सकता हूँ, आपने सीखा हो या ना सीखा हो, आराम से आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा ऑनेस्टी दिखाने गया भाई साहब कि नहीं मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं पहले गाड़ी चलाना सीखूँगा फिर लूँगा। मेरे कोई 4 बार उन्होंने बुलाया, हाँ उधर ही तभी कामोटे के आगे थोड़ा सा वो खांडेश्वर स्टेशन के उधर टेस्टिंग होती थी। वो जो ग्राउंड दिखता है ना आपको, वहाँ पे टेस्टिंग होती थी, पहले ड्राइविंग टेस्टिंग होती थी। और ड्राइव टेस्ट कैसा होता था मालूम है क्या, मतलब यहाँ से लेकर वो प्रसन्ना जहाँ तक बैठा है वहाँ तक भी आपने गाड़ी चला लिया, बस हो गया लाइसेंस बन गया। वो साहब बैठे रहते थे, साइन कर देते थे, उसमें भी उन्होंने मेरे को 4 बार बुलाया। खैर, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि आप धड़ाधड़, इंडिया आज की तारीख में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 4 व्हीलर्स है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इंडिया में बिकती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो इंडिया में बिकती है, ठीक है। तो आप सोचिए इस तरह से अगर हम चलते रहें तो एक बहुत बड़ा उपद्रव हमारे सामने है कि अभी आप देखो ये वाला जो रोड था, खारगर वाला जो रोड था, ये पहले इतना बड़ा लेन नहीं था। क्यों? तो इस लेन नहीं था, इसके लिए भाई साहब जाम होता था, रोज़ शाम को और सुबह को यहाँ पे जाम होता था।
क्योंकि इतना बड़ा रोड, अभी उसको 4 लेन बढ़ाया इन्होंने और भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये भी नहीं होगा, अगले 3 सालों में ये भी जाम होने वाला है, क्योंकि रोड्स के लेन बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जिस तरह से गाड़ियों की बिक्री हो रही है और जिस तरह से लोग फटाफट गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट हियर इज़ टू स्टॉप द सेल इटसेल्फ, और हम अभी नहीं कर पा रहे हैं उसको, ठीक है। एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गया है हमारे लिए, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर स्विट्जरलैंड का मॉडल हमने अपनाया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भाई साहब हालत ख़राब है, लोग भाई साहब लटक के भाई साहब ऑफिस जा रहे हैं, कैसे भी करके ज़िंदा पहुंच रहे हैं। अगर सब लोगों के ऑप्शंस बंद कर दिए गए और भाई साहब ऐसा ट्रेन या बस में सफ़र करने दिया गया, चलो हमने बहुत इंप्रूवमेंट कर भी लिया। हमारे यहाँ पे भाई साहब लोकल ट्रेन्स हर 4 मिनट में हैं, 4 मिनट में लोकल ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है। इंडियन रेलवेज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है और उसमें भी भाई साहब लद के पब्लिक जा रही है भाई साहब, ठीक है। तो इससे और अच्छा क्या फ्रीक्वेंसी करेंगे हम, प्रॉब्लम हमारा उधर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में दे रखा है, ठीक है। सो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार स्विट्ज़रलैंड में ऐसा है तो यहाँ पे क्यों नहीं है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम चारों तरफ से बंधे हुए हैं, हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव है कि हम अगर इन तौर तरीक़ों को अपनाने भी गए, दे विल बी अ बिग फेलियर, ठीक है। ओके, मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस, अभी देखो एक ही चीज़ कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। हम भाई साहब लोगों को 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खरीदने में मना नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है पीयूसी अगर आपका नहीं होगा तो चालान कटेगा या आपका लाइसेंस जब्त होगा, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डन। बीच में एक नियम आया था कि आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा अगर आपका पीयूसी नहीं है, तो खैर उसको तो अभी हटा दिया है क्योंकि पेट्रोल पंप में इतनी बड़ी लाइन लग गई है, सबका पीयूसी चेक करो, ठीक है। तो दैट हैज़ बीन स्क्रैप। मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन बाय नॉट हॉन्किंग, अरे इसमें हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये देखो भाई साहब डग 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 डग, हॉन्किंग नहीं, यहाँ पे तो भाई साहब ब्लास्टिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम कीक नहीं कर रहे हैं, हम ढाप ढूप कर रहे हैं, पाते हुए जा रहे हैं भाई साहब वो। चलो, मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन बाय नॉट हॉन्किंग एट द सिग्नल्स, अवॉइडिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा, इसमें हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट ही बिगड़ा है। पूरे रीफॉर्मेट मारेंगे अगर हम, मोबाइल जब कभी कभी ख़राब हो जाता है तो आप उसका पूरा रीफॉर्मेट मारते हैं, वो मारेंगे तो हो सकता है। पूरे इंडियन सोसाइटी में रीफॉर्मेटिंग की ज़रूरत है, तब जाकर इस चीज़ का हमको सेंस आ पाएगा नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। आपको मालूम भी नहीं है कि आप कितने इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये आपको मालूम नहीं है। आप जब 30 या 35 की उम्र क्रॉस करेंगे और अचानक में एक दिन ब्लड प्रेशर चेक कराने जाएंगे तो आप भी सरप्राइज़ हो जाएंगे, आपके डॉक्टर भी सरप्राइज़ हो जाएंगे। यू आर नॉट इवन अवेयर कि ये जो आपके आजू बाजू इतना सारा फालतू का साउंड क्रिएट होता है, इसका क्या असर आपके हेल्थ पे पड़ता है। ये आपके एंजाइटी लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोल रहा है। अनवांटेड नॉइस आपके एंजाइटी लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा। और ये एंजाइटी लेवल सालों साल बढ़ते 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 एक ऐसा टाइम आता है व्हेन योर ब्लड प्रेशर लेवल्स शूट अप। आज की तारीख में आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आएंगे क्योंकि आपकी उम्र कम है, लेकिन यही चीज़ 25-30 तक भी भाई साहब आपका ये सारे प्रॉब्लम्स निकल आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इन प्रॉब्लम्स को दे रहा है। और एनवायरनमेंट में चलो हम कार के प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चलो इनका हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस चीज़ का हम आराम से डील कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर सेंस हम यूज़ करें। पता नहीं कहाँ कहाँ से लाउड स्पीकर्स मतलब चल ही रहे हैं और इतना हम इसके आदी हो गए हैं कि मतलब हमको लगता है बिना शोर शराबा किए हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। Every festival that needs to be celebrated has to be backed up by some amount of noise that you create, और ये unwanted noise है, ठीक है। ओके, प्रॉपर आउटलेट्स फॉर पॉइजनस पोल्यूटेंट्स, तो आपका भाई साहब जो पॉइजनस पोल्यूटेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर आउटलेट्स होने चाहिए। आपके जो फैक्ट्री से इंडस्ट्रीज से जो पॉइजन निकल रहा है, दे शुड बी बेसिकली डाइवर्ज इनटू प्रॉपर प्लेसेस, नॉट टू ग्राउंड वाटर एंड ऑल, ठीक है। सो ये सब तमाम चीज़ें हैं, कॉजेज, विजिबल इफेक्ट्स और क्या रेमेडियल मेजर्स है। जब आप पोल्यूशन के बारे में, आपके आंसर्स भाई साहब अभी 8th या 7th स्टैंडर्ड के नहीं हो सकते, आपके पॉइंट्स एक दूसरे से एकदम अलग होंगे। आप इन आंसर्स के स्टाइलिंग को देखिए, इस तरह से आपके पॉइंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। कॉजेज क्या हैं, विजिबल इफेक्ट्स क्या हैं और रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, क्या क्या रेमेडी ले सकते हैं आप, ठीक है, इन सब बारे में।
टेररिज्म, अभी ये हमारा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है टेररिज्म, और इससे हम एक आम नागरिक होकर कैसे निपट सकते हैं। ठीक है, देखिए टेररिज्म जो है वो गवर्नमेंट के इंटेल पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, जैसे इंडिया में रॉ के इंटरनल इनपुट्स हैं, ठीक है, तो ये सब हैंडल करते हैं। लेकिन हम अपने लेवल पे इस चीज में क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। आपसे सिर्फ आशा की जा रही है जागरूकता। ठीक है, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपको कोई एक ऐसा बैग दिख रहा है जिसको कोई भी भाई साहब उठा नहीं रहा है, या किसी अन्य मतलब किसी पब्लिक प्लेस में आपको कोई ऐसा चीज़ दिख रहा है रखा हुआ है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है बहुत देर से, तो प्लीज़ रेज एन अलार्म। ठीक है, प्लीज़ रेज एन अलार्म, प्लीज़ मेक द पब्लिक अवेयर और द अथॉरिटीज़ अवेयर। पब्लिक को अवेयर करना भी ज़रूरी है और अथॉरिटीज़ को भी। इतना मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन हम सब को करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट किस कहाँ तक पहुंचेगी, टिल वेयर विल इट रीच। ठीक है, सो इट्स नॉट गोइंग टू रीच एवरीवेयर। तो अगर पब्लिक में जागरूकता नहीं है तो टेररिस्ट लोग इसका फायदा उठाएंगे ही, दे विल। ठीक है, सो टेररिज्म एक हमारा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। स्प्रेडिंग फियर एंड टेरर इन अ सोसाइटी बाय यूजिंग और थ्रेटनिंग टू यूज वायलेंस अगेंस्ट कॉमन एंड इनोसेंट पीपल फॉर अचीविंग पॉलिटिकल गोल्स। तो दहशत है, आपने भाई साहब कहीं पे बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, 50 लोग मर गए, तो ये क्या हो गया, अभी दहशत हो गया लोगों में। ठीक है, जैसे ही ऐसा, तो ये होता कैसे, इसका फायदा कैसे होता है, समझ लो भाई साहब। अगर हमारे कहीं पे भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 50-60 लोग मर गए, अभी उस जगह पे लोग जाने में डरेंगे, दे विल बी बेसिकली अफ्रेड। और ये डर का जो रिजल्ट होगा वो सारी चीज़ों पे आएगा। आपका स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट का रेट गिर जाएगा, धंधे ठप हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब एक बॉम्ब ब्लास्ट और दहशत में आ जाएगी पब्लिक, और जब दहशत में आ जाएगी तो भाई साहब ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, रिकवरी में टाइम लग जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। ओके, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वायलेंस, ठीक है, डीप एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स पे भाई साहब, अभी देखो अगर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर से देखो 2 कंट्रीज में भाई साहब लड़ाई चालू। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट। टेररिस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड ओवर लास्ट 2 डेकेड्स, 20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये। टेररिस्ट ग्रुप्स कॉज वायलेंस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टेररिस्ट अटैक्स चैलेंज अ रेजिम इन अ कंट्री और रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। तो मतलब एक किसी दूसरे कंट्री के लोगों को ये चैलेंज करती है। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री इज थ्रेटेंड इन एडिशन टू इट्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो सारी चीज़ों में भाई साहब एक थ्रेटनिंग इम्पैक्ट आता है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ऑफ डिफरेंट नेशंस शुड वर्क इन अ कंसर्टेड मैनर टू कर्ब टेररिज्म। तो हमारे जितने भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं, चाहे रॉ हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इंटेल हो, चाहे कोई एजेंसी हो, दे शुड ऑल बी वर्किंग टुगेदर टू कर्ब टेररिज्म। ट्रेडिशनल वॉर्स, ठीक है, conflict between 2 or more sovereign states, geographical boundaries between nations acquire importance। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी इज कनेक्टेड विद ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अभी देखो जैसे इंडिया और पाकिस्तान का एक बाउंड्री है जिसमें हमेशा तनाव बना हुआ है, इंडिया और चाइना का एक बाउंड्री है जिसमें हमेशा तनाव बना हुआ है। ठीक है, और जब भी वॉर होता है पहले इन बाउंड्री एरियाज पे होता है। ठीक है, okay, explain the following terms. Terrorism includes spreading of fear and terror in society by using or threatening to use violence against common and innocent. This is done in an organized and planned manner। ठीक है, मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम है आज की तारीख में। ठीक है, और इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म भी। ठीक है, ऑन इंटरनेशनल several countries in the world are facing this threat. In terrorism, geographical boundaries of nations are not relevant। तो मतलब आप बाउंड्री क्रॉस करके टेररिज्म कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बैठे बिठाए भाई साहब कोई टेररिस्ट अटैक करवा सकते हैं आज की तारीख में। ठीक है, दे चैलेंज द रेजिम्स ऑफ अ कंट्री, एक पूरे कंट्री को चैलेंज करते हैं और रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। द टेररिज्म थ्रेटन्स नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। तो भाई साहब सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी को भी टेररिज्म थ्रेटन करता है। टेररिज्म नीड्स टू बी कर्ब्ड इमीडिएटली, इसको जल्दी से जल्दी भाई साहब कर्ब करना है। सिंस नो नेशन कैन सिंगल हैंडेडली काउंटर टेररिज्म, द सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ऑफ डिफरेंट नेशंस नीड टू वर्क इन अ कंसर्टेड मैनर टू कर्ब टेररिज्म। इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म क्या क्या है भाई साहब आपके देखिए। टेररिज्म क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द सिटीजंस। कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर कहीं पे भी होता है
लोग उसके बाद बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। ऑब्वियसली लोगों की, मासूम लोगों की जानें जाती हैं, तो आपके ऊपर भी भाई साहब एक प्रेशर आ जाता है, यार बाहर तो निकल रहे हैं, जिंदा लौटेंगे ना, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। द फाइनेंशियल लॉस एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉस्ट ड्यू टू टेररिज्म इज ह्यूज। तो टेररिज्म का भाई साहब लॉस ऑफ लाइफ तो होता ही है, प्लस साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉस भी होता है। जो घर में कमाने वाले होते हैं, अगर उनकी जान चली गई तो मतलब वो फैमिली का चलेगा कैसे, हाउ विल दे मैनेज। और दूसरा, जैसे ही आपका टेररिस्ट अटैक किसी भी कंट्री पे होता है, फटाक से उस कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग अभी दहशत में आ गए हैं, लोग अभी इनसिक्योर हो गए हैं, ठीक है, तो स्टॉक्स के प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। द मुंबई टेररिस्ट अटैक्स दैट हैपेंड ऑन द 26th of November 2008 resulted in tremendous loss of life and property. It adversely affects the tourism industry by significantly reducing the number of terrorists, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में एक कैफ़े है जिसका नाम है लियोपोल्ड कैफ़े, ठीक है, और ये आपके एक्चुअली साउथ मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है, और वहाँ पे ये जो कसब आया था तब वहाँ पे गोलियाँ चली थी। ये लियोपोल्ड कैफ़े जाना जाता है फॉरेनर्स के लिए, वहाँ पे ज़्यादा करके फॉरेनर्स आते हैं उस कैफ़े में। वहाँ पर जो भी फूड सर्व होता है या जो भी अल्कोहल सर्व होता है, मे बी इट इज़ केटर टू द नीड्स ऑफ फॉरेनर्स। तो मुंबई में ज़्यादा करके फॉरेनर्स उस कैफ़े में जाते हैं, और जब यहाँ पे गोलियाँ चली तो काफ़ी सारे फॉरेनर्स ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। ऑब्वियसली दे वर वेरी टेरिफाइड अबाउट इट, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग। सो ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है? टूरिज्म को इम्पैक्ट कर रहा है। द इंक्रीजिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन कश्मीर आफ्टर द डेकेड ऑफ 1980 had an extreme negative impact on the tourism industry there. कश्मीर आज की तारीख में भी हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, लेकिन पहले एक टाइम था कि कश्मीर में रोज खून की नदियां बहती थी। इट इज सच अ ब्यूटीफुल स्टेट एंड इट कैन बेसिकली अर्न करोड्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री फॉर इंडिया, बट द मेन प्रॉब्लम है दैट इज टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म की वजह से लोग भाई साहब वहां पे नहीं जा रहे हैं, खुद इंडिया के लोग ही नहीं जा रहे, बाहर का तो छोड़ दो, ठीक है। रेमेडीज टू काउंटर टेररिज्म, इफ वी नोटिस एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट और एक्शंस, ठीक है ना भाई साहब, वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द सेम। तो देखो भाई साहब, ना ही हम रॉ में काम करते हैं और ना ही हमको कोई इंटेल इनपुट्स होता है और ना ही हम एक साधारण नागरिक हैं। तो एक साधारण नागरिक का टेररिज्म के अगेंस्ट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है? एक साधारण नागरिक का टेररिज्म के अगेंस्ट में ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि कुछ भी सस्पिशियस दिखता है, कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई भी, तो उसको फटाफट रिपोर्ट कीजिए अथॉरिटी को, ठीक है। गेट दैट रिपोर्टेड एज सून एज पॉसिबल, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में ही टेररिस्ट एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। किसी को आपको दिख रहा है कि भाई साहब ये इंसान थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, कुछ तो मतलब बहुत देर से यहाँ पे भटक रहा है, ठीक है, तो सीधा पुलिस को उसको एस्केलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नो नेशन इज कैपेबल ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म एंटायरली ऑन इट्स ओन। आज की तारीख में टेररिज्म इतने विस्तारित रूप से फैला हुआ है कि कोई भी नेशन अकेले टेररिज्म को हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए नेशंस को कोऑपरेट करके इसको हैंडल करना है, ठीक है। सो इन टुडेज वर्ल्ड यू विल सी दैट नेशंस आर कमिंग टुगेदर इन ऑर्डर टू हैंडल दिस, ठीक है। Hence all concerned nations should come together to solve this problem, ठीक है। तो ये एक भाई साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। कल हम बात करेंगे भाई साहब प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज की।